Good morning, class. Okay, so am I audible? It would be, I will be very thankful if any one of you can just respond and tell me that if the audio or video quality is okay or not. Clear आ रही है आवाज. Are you? Thank you so much. Okay, so in design of RC structures, we were in the second unit and we were discussing about the design wind loads, right? So in the last class I told you about the design steps, how to find the wind force and how to find the how to calculate the wind loads, right? So in the last class I told you about some concepts and the IS 875 concepts. I've told you that what are the provisions to design a structure basically to find the wind load, right? So in today's class, we will be discussing one numerical that I've already given you in the last lecture. So I'll be discussing that numerical today, and I think the concept will be more clear when we'll do this numerical problem. Okay. So I'll directly take you that I'll directly take you to that numerical problem. I'll share my screen with you all. Okay, so my screen is visible to you all. Yes, sir. Okay, thank you. So we have already discussed the design steps for finding wind load on building as per IS 875 Part 3 2015 revision. This is your code for designing of wind load. Fine. So I'll be very firstly I'll be going through this design steps because we have already discussed them in the class, and we'll also see them while we are designing our while we are doing that numerical problem. Okay, so that will be clear from there also. So first step was to find the design wind speed. I told you it is written as Vz or Vd, anything you can adopt. So it is like Vb into K1, K2, K3, and K4. K1, 2, 3, 4 were your coefficients and factors, right? So it's already given here. So Vb was your wind speed, and that is in meter per second. That is your basic wind speed. You can find it in page number 6. And whatever the page number here I have already written and already discussed here. So these are the coefficients: risk coefficient, terrain coefficient, topography factor, importance factor for cyclonic region, and all we have discussed. Second step is to find the design wind pressure, which is PD, right? So for finding PD, we need to find KD, KA, KC, and PZ. ये चारों terms हम लोगों को find out करने हैं. So PZ, how can we find PZ? PZ is wind pressure at height Z. Okay, so Z is the height in meters, of course. Wind pressure will be Newton per meter square, right? So PZ you can find from 0.6 Vz square. So Vz you can find from this step 1. Okay. Now the remaining KD, Ka and Kc are wind directionality factor, area averaging factor, and combination factor, right? These are 3 factors that you have to find. So these are given in these clauses of your IS 875, right? So we'll be designing using these, okay? And then third step is to find the wind force, which is given because F equals to CF into AE into PD. Here also we have to find CF and PD. Sorry, AE, PD is already, we have already find out PD in the last step. So CF and AE you can find from here.
Okay, CF is force coefficient and A is effective frontal area. So I've told you that for CF there are two parts. One is on wind acting on RC building, and another one is wind acting on water tank, right? So we will be discussing this wind acting on RC building. There are two terms here. H upon B is less than 1 or H upon B is greater than 1. There are two cases, right? So for these two cases, we have to look at the graph, that is 4A and 4B, that we'll be seeing after some time. And for AE, effective frontal area, and I told you for effective frontal area, it is the length perpendicular to the wind. Okay, upon the total number of columns in that direction. तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो प्लान is your top view. ठीक है, ये आपका लेंथ है perpendicular to the wind. तो आप इस लेंथ को कैलकुलेट कर लोगे. That is 5 5 5 5 5 कितने टाइम्स हो गए? 5 टाइम्स हो गए. That is 25. तो यहाँ आ जाएगा 25 meters upon the total number of columns. You can count 1, 2, 3, 4, 5 and 6. So 6. तो इसके हिसाब से आ जाएगा in meter square, right? I told you this is in per meter, तो ये इसलिए आपका एरिया मीटर स्क्वायर पे 4.1 meter square ये आया था, ठीक है? So I ended my concept here. Now I'll be discussing the numericals that I have given you in the last class. So this was the design problem that I have given you. So the question was a multi-story building, 20 meter into 30 meter. This is plan dimension, right? So this is your plan. तो टॉप वाला व्यू का जो डायमेंशंस है वो गिवन है, जो हम लोग बोल रहे हैं ए और बी, ठीक. एंड हाइट इज 30 meters. दिस इज एच. बे विथ 5 meters in both direction, like I told you. This is your bay from column to column. This is 5 meter in one direction and again 5 meter in other direction, ठीक है? तो ये भी गिवन है आपको. Location is story height is uniform and location is Surat, that is Gujarat. So here it can be any place, okay? So you'll have to find from this code. And category is already given 3. Topography, plane with a upwind slope is less than 3 degrees. So there was one case where we have to find the topography factor. So again that was in that case we have slope less than 3 and slope greater than 3, right? So this one is for the slope less than 3 degrees Celsius. 3 degrees, sorry. So this is life of building is given 100 years. आपको क्या डिटरमाइन करना है? विंड लोड एक्टिंग ऑन द इंटरनल फ्रेम. विंड लोड्स आपको निकालने हैं सारे, एंड ड्रॉ विंड प्रेशर डायग्राम. और विंड प्रेशर डायग्राम आपको ड्रॉ करना है, राइट? सो दिस वाज द क्वेश्चन. सो आई थिंक ऑलरेडी आप लोगों ने क्वेश्चन कुछ लोगों ने अटेम्प्ट करने की कोशिश की होगी, ठीक है? आप लोग मैच कर सकते हैं. बाकी जिन्होंने नहीं किया वो लोग अभी इसके स्टेप्स देख लें, because this is going to be very important question. इस यूनिट में बहुत highly expected है कि क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, एग्जाम्स. सो फर्स्ट स्टेप, वही स्टेप जो ऊपर में कंसेप्ट में बताया, वही स्टेप्स में यहाँ पर आपको रिपीट कर रहा हूँ. सो द डिजाइन विंड स्पीड VD और VZ निकालने का फॉर्मूला आपको पता है. VB into K1, K2, K3 and K4. This is already given in page 5. I have shown you earlier. So VB is your basic wind speed and VB you can find from appendix A, page number 81. ठीक है, तो अब हम लोग सीधे चलते हैं अपेंडिक्स A, पेज नंबर 81 में, राइट? इसको थोड़ा सा मैं बड़ा करता हूं. ओके, सो आई विल टेक यू टू पेज नंबर 81, अपेंडिक्स A. I think I've written something wrong there. Okay, I'll take you appendix A. This is B, this is A, right here. ठीक है, तो बेसिक विंड स्पीड निकालने के लिए मैंने आपको बताया कि आप कैसे निकाल सकते हो. कुछ इंपॉर्टेंट सिटीज के नाम ऑलरेडी गिवन है यहाँ पे, राइट? सो हम लोग जो डिस्कस कर रहे हैं क्वेश्चन में उसमें लिखा था सूरत, ठीक है? तो यू कैन फाइंड सूरत हियर इटसेल्फ. ये देखिए अल्फाबेटिकली लगे हुए हैं ये नाम, ठीक है? तो सूरत ये रहा, ठीक है? तो सूरत के लिए कितना गिवन है? बेसिक विंड स्पीड इज 44, ठीक है? अगर आप कहीं और के लिए कर रहे होते हैं, लेट अस से देहरादून, तो आप देहरादून के लिए देख सकते हो. देहरादून ये देखिए, इसके लिए आपको यूज करना होता है 47 मीटर पर सेकेंड. सो फॉर दिस क्वेश्चन वी आर सॉल्विंग फॉर सूरत, वी आर डिजाइनिंग फॉर सूरत, राइट? सो वी विल टेक 44. तो देख लीजिए यहाँ पर हमने 44 अडॉप्ट किया है. सो बेसिक विंड स्पीड इज योर 44 मीटर पर सेकेंड. दिस इज नॉट पेज 81. दिस यू कैन जस्ट check from here. This is page number 51.
Okay, so written 81, it is 51. Just okay. So a second thing was to find K1, K2, K3, and K4. So next is your K1, right? Risk coefficient factor. रिस्क कोफिशिएंट फैक्टर निकालने के लिए मैंने आपको बताया था एक टेबल गिवन है, ठीक है? तो टेबल इज इन पेज नंबर 1, सॉरी ये पेज नंबर 7, द टेबल इज टेबल नंबर 1. तो ये किसके लिए गिवन है आपको? देखिए आपको 100 इयर्स के लिए डिजाइन करना था, ये गिवन है, और आपको वी भी गिवन है. तो इन दोनों फैक्टर्स से आप लोग को K1 निकालना है. सो आई विल टेक यू टू टेबल 1. मैं आपको कोड में इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आप लोगों को इजी रहे, आप लोग जब भी क्वेश्चन को सॉल्व करो तो आपको पता हो कि कौन से स्टेप में कहाँ पर से आप लोगों को ये वैल्यूज फाइंड आउट करनी है, राइट? So this is table 1 and this one is your table 1, right? तो यहाँ पे लिखा देखिए risk coefficient for different classes of structure. So ये किसमें गिवन है? क्लॉज 6.3.1 टेबल 1. ओके, तो इसमें देखिए हम लोगों को क्या चीज निकालनी है? K1 फॉर फाइंडिंग द K1 फैक्टर फॉर बेसिक विंड स्पीड. सो हमारा कितना था? 44 था, ठीक है? जो हमने वी निकाला था 44 आया था, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग हम लोगों को निकालना है फॉर 100 ईयर्स. तो यहाँ पे देख लीजिए लिखा है 100 ईयर्स 44. तो कौन सा वाला लेंगे हम लोग? ये वाला लेंगे 1.07. सो K1 विल बी 1.07. ठीक है, इस तरीके से आपको कोड से फाइंड आउट करना है. मान लीजिए 2500 के बीच में कुछ 75 ईयर्स होता तो आपको लीनियर इंटरपोलेशन से सॉल्व करना पड़ता, ठीक है? वो आप लोग कर सकते हो उसको. सो फॉर नाउ वी हैव दिस K1 वैल्यू इज 1.07. ठीक है, ये देख लीजिए 1.07 फ्रॉम टेबल 1. ये हमने फाइंड आउट कर लिया. नेक्स्ट इज योर K2. दिस इज टेरेन हाइट एंड स्ट्रक्चर साइज फैक्टर. सो कैटेगरी वाज ऑलरेडी गिवन, कैटेगरी 3 है. टेबल नंबर 2 हम लोगों को देखना है. इसमें साइज प्लान साइज जो है 20 by 30 मीटर्स है. हाइट ऑफ बिल्डिंग इज 30 मीटर्स. ठीक है, तो ये हाइट जो है 10, 15, 20, 30 मीटर्स इस तरीके से. और हमने 10 से कम हाइट इसलिए नहीं ली क्योंकि मैंने बताया था आपको हम 10 मीटर से ऊपर की विंड लोड को कंसीडर करते हैं, राइट? सो 10, 15 ये अलग अलग जगह पे हमने देखा है, अलग अलग स्टोरी पे देखा है. देखिए ये बात समझने वाली है यहाँ पे कि जो विंड आ रही है ना, जो विंड इसमें फोर्स लग रहे हैं, तो वो क्या है, हर हाइट पे अलग अलग लग रहे हैं, राइट? तो आप देखोगे कि कोफिशिएंट की वैल्यू भी बढ़ती जा रही है. जैसे जैसे हाइट बढ़ रही है वैसे वैसे कोफिशिएंट की वैल्यू बढ़ती जा रही है. तो अलग अलग फ्लोर पे अलग अलग विंड फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं, ठीक है? तो K2 की वैल्यू हम लोग हर एक जगह पे फाइंड आउट कर लेते हैं. इसके लिए हम जाते हैं टेबल नंबर 2 पे. And this is your table number 2, ये वाला, ठीक है? तो ये टेबल नंबर 2 है फॉर ऑब्टेनिंग दिस K2. ठीक है, सो K2 में हम लोगों को पता है हमको कैटेगरी कौन सी गिवन थी? कैटेगरी 3, राइट? कैटेगरी 3 गिवन थी और हाइट आप लोगों को गिवन है कितना? 10, 15, 20, 30 मीटर्स तक आपको निकालनी है. तो 10 मीटर से शुरू हो जाती है. तो हम लोगों को ये सारी कैटेगरी 3 की वैल्यूज लेनी पड़ेगी. 0.91, 0.97, 1.01 एंड 1.06. देखिए मैंने ड्रॉप की होगी 0.91, 0.97, 1.1 and 1.06, right? So 1.01 and 1.06. तो ये सारे के सारे अलग अलग हाइट पे K2 की वैल्यूज आपको यूज करनी पड़ेंगी. बट इसके लिए आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कैटेगरी क्या है. कैटेगरी इज 3, राइट? तो ये ऑलरेडी गिवन है क्वेश्चन. मूविंग ऑन फर्दर, K3 कैसे निकालना है? टोपोग्राफी वाला जो था फैक्टर, स्लोप हम लोगों का लेस देन 3 डिग्री पे था, राइट? तो इसके लिए हम लोगों का क्लॉज था 6.3.3.1. तो पेज नंबर 8 पे हम लोग देख लेते हैं. ये देखिए दिखा नहीं टोपोग्राफी के लिए K3. सो K3 के लिए वैल्यू हम लोगों को कितनी लेनी है? द वैल्यू ऑफ मे बी टेकन इक्वल्स टू 1 फॉर 3 डिग्री एंड बिलो. ठीक है, 1 लेनी है 3 डिग्री एंड बिलो के लिए, और उससे ऊपर अगर है तो 1 से 1.36 के बीच में वेरी करेगी. ठीक है, वो आपको एनएचएस सी पे गिवन है. तो ये वाला केस भी हम आगे चल के देख लेंगे जब स्लोप मोर देन 3 डिग्री होगा. फिलहाल हमारे क्वेश्चन में स्लोप लेस देन 3 डिग्री है, सो वी विल बी टेकिंग K3 equals to 1, राइट? तो देख लीजिए यहाँ पर K3 हमने 1 अडॉप्ट किया हुआ है. ठीक है, उसी तरीके से K4 इंपॉर्टेंस फैक्टर फॉर ऑल स्ट्रक्चर्स, इट इज गिवन इन 6.3.4. इसमें क्या लिखा हुआ है देख लीजिए 6.3.4. ये देख लीजिए K4 साइक्लोनिक रीजन वाला जो लिखा रिटर्न है यहाँ पे. तो इसमें मैंने आपको बताया था फॉर जहाँ पर पोस्ट साइक्लोन जो साइक्लोनिक वाले जो साइक्लोनिक जोन पे आते हैं उन स्ट्रक्चर्स में 1.3 लेना है, इंडस्ट्रियल स्ट्रक्चर्स पे 1.15 लेना है एंड अदर स्ट्रक्चर्स पे 1 लेना है. सो हम लोगों को ऐसा कुछ मेंशन नहीं है, तो वी विल कंसीडर फॉर ऑल अदर स्ट्रक्चर्स. सो वी विल बी टेकिंग K4 वैल्यू आल्सो 1. तो K4 की वैल्यू देख लीजिए हमने 1 अडॉप्ट कर लिया यहाँ से. ठीक है,
तो अब हम लोगों के पास वी डी हम लोग निकाल सकते हैं। सो वी डी हम लोगों का हो जाएगा वी बी इंटू K1 K2 K3 एंड K4। तो सब कुछ हम लोगों को पता है। K2 मैंने इसलिए नहीं लिखा क्योंकि हर हाइट पे वेरी कर रहा है, 10 मीटर्स 15 मीटर्स 20 एंड 25 30 मीटर्स इस पे वेरी कर रहा है। ठीक है, तो ये हम आगे चल के निकालेंगे। मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट स्टेप, स्टेप नंबर 2, डिजाइन विंड प्रेशर। ठीक है, पीडी निकालना है तो उसके लिए हम लोगों को मैंने बताया था एक तो पीजेड की जरूरत है और केडी के एन के सी, ये 3 फैक्टर्स और निकालने हैं हम लोग। पहले पीजेड निकाल लेते हैं। पीजेड निकालना आसान है। पीजेड का फॉर्मूला क्या था, 0.6 टाइम्स वीजेड स्क्वायर। वीजेड आपने ऊपर निकाला है यहाँ पे। ठीक है, ये वीजेड की वैल्यू आएगी। जैसे हम K2 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे यू विल गेट वैल्यू फॉर वीजेड, मतलब उस हाइट पे आपको वेलोसिटी मिल जाएगी। ओके, सो ये हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे नीचे टेबल पे। सिर्फ ये वाली वैल्यूज जहाँ सब्स्टिट्यूट करनी है, बीजेड की वैल्यू यहाँ से लेनी है और यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देनी है, पीजेड मिल जाएगा आपको। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट स्टेप इज टू फाइंड केडी के एंड केसी। अब केडी के और केसी कैसे हम फाइंड करेंगे, देखिए केडी जो है वो गिवन है आपका 7.2.1 पे। ठीक है, ये विंड डायरेक्शनलिटी फैक्टर केडी, ये देखिए यहाँ पे गिवन है 7.2.1 पे। ठीक है, फॉर साइक्लोन अफेक्टेड रीजन ऑल्सो फैक्टर केडी शैल बी टेकन एज 1। इससे पहले लिखा था फॉर ट्राइंगुलर स्क्वायर रेक्टेंगल फैक्टर ऑफ 0.90 में भी यूज। ठीक है, अगर ऐसा कुछ दिया है कि ट्राइंगुलर स्क्वायर रेक्टेंगुलर बिल्डिंग है तो 0.9 यूज करना है। और डिजाइन विंड प्रेशर फॉर सर्कुलर और नियर सर्कुलर, जो करीब करीब सर्कुलर टाइप की बिल्डिंग है उनके लिए फैक्टर हम लोगों को 1 यूज करना है। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरीके का कुछ भी मेंशन नहीं था, हम लोग इसको केडी की वैल्यू ले लेते हैं। फॉर ट्रस टावर्स एंड फैक्टर्स 0.90। ठीक है, तो कहीं पर भी ऐसा सर्कुलर या नियर सर्कुलर मेंशन नहीं है तो वी कैन टेक अराउंड दिस वैल्यू 0.90। ठीक है, ये पेज नंबर 9-10 पे गिवन है आप लोगों का 0.90। यहाँ से आपको केडी की वैल्यू निकल आएगी 0.90। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट फैक्टर है केसी। केसी निकालने का, केसी क्या कॉम्बिनेशन फैक्टर है, ये अगेन 7.3.3.13 पे गिवन है पेज 16। ये देखिए 7.3.3.13 फ्रेम्स वाला जो गिवन है, इसमें केसी की वैल्यू गिवन है रिडक्शन फैक्टर ऑफ केसी 0.09 में बी यूज्ड ओवर द बिल्डिंग एनवलप। ठीक है, तो ये कितना गिवन है 0.90, तो ये भी 0.90 हमने यहाँ पर अडॉप्ट कर लिया, देख लीजिए केसी इक्वल्स टू 0.90। ठीक है, उसी तरीके से लास्ट फैक्टर आपको बचता है के ए। ठीक है, केसी केडी फाइंड आउट हो गया, के ए आपको फाइंड आउट करना है। के ए क्या होता है, एरिया एवरेजिंग फैक्टर। ठीक है, सो इसमें हम लोगों को क्या देखना पड़ता है, एरिया एवरेजिंग फैक्टर मैंने आप लोगों को बताया था टेबल नंबर 4 पे गिवन है। I'll take you there. टेबल नंबर 4। ठीक है, ये देखिए एरिया एवरेजिंग फैक्टर के, इसमें देखिए किस पे डिपेंड करता है, ट्यूबिलिटी एरिया पर। ट्यूबिलिटी एरिया मैंने क्या बताया था आपको, जो आपका जो बे लेंथ दी है वो एरिया है। ठीक है, तो आपका 5 मीटर दोनों डायरेक्शन में दिया, तो 5 into 5 25 मीटर्स के हो जाएगा, तो आपका ट्यूबिलिटी एरिया कितना हो जाएगा 25। इसके कॉरस्पॉन्डिंग के की वैल्यू कितनी है 0.9। तो यहाँ पर देख लीजिए हमने 5 into 5 25 मीटर स्क्वायर की कॉरस्पॉन्डिंग 0.9 वैल्यू ले ली है और 25 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये सब आपको पता चल गया। अब हम लोग एक टेबल फॉर्म करेंगे। यहाँ पे टेबल देख लीजिए आप, मैंने बताया था डिफरेंट हाइट के संग इट विल वेरी। सो 10 15 20 एंड 30 मीटर्स मैक्सिमम हाइट है, ये सब हम लोगों की हाइट है। वीबी विल बी कांस्टेंट, वीबी फैक्टर सेम था, K1 सेम रहेगा सबके लिए। K2 पे वेरिएशन था क्योंकि हर मीटर पे वो चेंज हो रही थी, हर अलग अलग मीटर्स पे वो चेंज हो रही है हर हाइट के साथ, तो ये चेंज हो रहा था, ये हमने ऊपर निकाला था। K3 वाज 1, सब कॉमन रहेगा, K4 कॉमन रहेगा, तो VZ आप निकाल लोगे, VZ वाज VB into K1 K2 into K3 into K4, तो इससे आ गया ये वैल्यूज। ठीक है, सबके लिए आ जाएगी, सारी हाइट पर अलग अलग VZ की वैल्यूज आती है। देखिए 42 45 47 49, और जैसे जैसे हाइट बढ़ती जा रही है वैसे वैसे ये वेलोसिटी बढ़ती जा रही है, देखिए। ठीक है, उसी तरीके से हम पीडी निकालेंगे, डिजाइन प्रेशर विंड प्रेशर, तो उसके लिए हम लोगों को पीजेड की जरूरत थी। पीजेड कितना था 0.6 टाइम्स वीजेड का स्क्वायर, तो इस फॉर्मूले में आप रख दो, वीजेड का स्क्वायर करो और 0.6 से मल्टीप्लाई कर दो, यू विल गेट दीस वैल्यूज, दैट विल बी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। एंड पीडी योर डिजाइन विंड प्रेशर, वो क्या होता था आपका, जो के ए के ये वाला फैक्टर्स होते थे हम लोगों ने जो अभी निकाला, के ए के सी एंड के डी इंटू पीजेड, है ना, यहाँ से निकालोगे पीजेड निकल आया है, तो इन तीनों फैक्टर्स को मल्टीप्लाई कर दो। तीनों फैक्टर्स देखिए क्या है, 0.9 0.90 0.99 है। ठीक है, तो आप मल्टीप्लाई करके देख लेना, यहाँ पे 0.9 into 0.9 into 0.9 into दिस वैल्यू पीजेड
इट विल गिव यू दीज वैल्यूज। ठीक है, तो ये आपका पीडीवी निकला है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका सेकंड स्टेप खत्म हो गया। यहाँ पर आप लोगों ने डिजाइन विंड प्रेशर निकाल लिया है अभी तक का। ठीक है, तो आप देख लो प्रेशर भी जो है हाइट के संग इंक्रीज होते जा रहा है। ठीक है, दिस इज इन न्यूटन पर मीटर स्क्वायर बिकॉज दिस इज प्रेशर फोर्स अपॉन एरिया। राइट, तो ये टेबल बनानी जरूरी है। ये टेबल आप लोग बनाएंगे, हर हाइट पे आपको पता चल जाएगा कि कितना प्रेशर विंड प्रेशर एक्ट कर रहा है। राइट, नाउ नेक्स्ट स्टेप इज टू फाइंड द डिजाइन विंड लोड। ठीक है, एफ, तो कितना फोर्स लग रहा है, कितना डिजाइन हम लोगों को विंड लोड कितना कंसीडर करना है, वो स्टेप 3 से हम फाइंड आउट करेंगे। राइट, सो फोर्स इज गिवन एज CF AE into PD। तो CF हम लोग कैसे निकालेंगे, हम लोग तो डिस्कस किया था। CF निकालने के लिए मैंने आपको बताया था दो केसेस थे। एक तो था H/B इज ग्रेटर देन 1 और एक केस था H/B इज लेस देन 1। राइट, सो इसमें पहले हम लोगों को H/B और A/B ये फैक्टर्स जानने पड़ेंगे, क्या चीज होता है फॉर CF। राइट, तो वो हम कैसे निकाल सकते हैं। ये आपको प्लान है 20/30 का, मतलब टॉप व्यू ये है, और ये आपका एलिवेशन है, हाइट 30 मीटर्स की, और ये वन साइड है, ये वाली साइड है 20 मीटर्स बिल्डिंग की। ठीक है, तो ये परपेंडिकुलर साइड है किसकी, अब परपेंडिकुलर टू द विंड है ये वाली साइड। राइट, सो दिस इज योर प्लान एंड दिस इज द एलिवेशन। सो ए और बी क्या है, ए ये वाली साइड है जो प्लान की छोटी वाली साइड है, और जो लंबी वाली साइड है वो प्लान की बी वाली साइड है। राइट, एंड आपका देखेंगे एलिवेशन में आपका हाइट गिवन है 30 मीटर। सो यू नो दिस ए बी एंड एच। राइट, तो ए बी एच कितना है, ए बी 20 है, बी 30 है और एच 30 है। ठीक है, सो हम लोगों को क्या निकालना था, बी H/B फैक्टर निकालना था। राइट, तो H/B इज हियर इज 30/30 इज 1। तो मैंने बताया था H/B ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 और H/B लेस देन 1 के लिए अलग अलग ग्राफ है। ठीक है, सो अवर इज H/B इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, ये वाला है, तो ये वाला ग्राफ हम यूज करेंगे। ये ग्राफ मैंने आपको पेज नंबर 39 4A, सो आई विल टेक यू देयर, पेज नंबर 39 4A। Yes, this is it। ठीक है, ये वाली चीज मैंने आपको दिखाई थी। ये देखिए आपका दिस इज योर ग्राफ फिगर 4। ठीक है, पेज नंबर मैंने शायद फिर गलत लिख दिया, इट इज 35। ओके, सो ये गिवन है फिगर 4A, हम लोगों को यूज करना है इसमें। और जस्ट मिनट, मैंने वो क्लोज कर दिया। ओके, ये स्क्रीन विजिबल है आप लोगों को? ओके, ठीक है, तो मैंने आपको बताया H/B ग्रेटर देन इक्वल टू 1 हम लोगों को आया, तो हम लोगों को 4A वाला ग्राफ यूज करना है। अब इसको कैसे यूज करना है मैंने बताया था आपको, इट डिपेंड्स अपॉन A/B वैल्यू। ठीक है, A/B वर्सेस CF, तो A/B की कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू निकालोगे तो A/B आप निकाल लोगे। A/B इज योर दिस प्लान एंड दिस इज एलिवेशन, जो आई हैव ऑलरेडी ड्रॉन इन योर क्वेश्चन, ये मैंने दिखा रखा है इन योर सॉल्यूशन, मैंने आपको दिखाया है ये चीज। ठीक है, तो हम लोगों का कितना आ रहा है आप देख लीजिए। सो A/B इज कमिंग 20/30 0.667। ठीक है, तो CF की वैल्यू इसके कॉरेस्पॉन्डिंग क्या आएगी, 0.667 कहाँ पर आएगा, देखिए ये 0.5 है, करीब करीब यहाँ पर आएगा। ठीक है, तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग अगर आप देखेंगे 1 वाले ग्राफ में, ये है 1 वाला ग्राफ, क्योंकि H/B हमारा 1 आया है। अगर H/B 3 4 5 कुछ भी आता तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग आप वही ग्राफ देखते। ठीक है, सो 0.66 के कॉरेस्पॉन्डिंग 1 में आप देखिए ये कुछ 1.2 अराउंड समथिंग आ रहा है। ठीक है, 1.5 ये है, ये 1 है, ये 1.2 के बीच में कहीं पर आ रहा है, 1.5 से थोड़ा नीचे की तरफ आ रहा है। ठीक है, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग देख लीजिए हमने कितनी वैल्यू ली है यहाँ पे, CF की वैल्यू मैंने ली है 1.22। ठीक है, 1.20 से 1.125 के बीच की कुछ वैल्यू लेनी थी, हमने ये ले ली।
ठीक है, तो आपको ये ग्राफ चेक करना पड़ेगा। अगर ये वैल्यू आपकी लेस देन 1 आ जाती है h/b, तो आप लोगों को ये वाला ग्राफ यूज करना पड़ता है, h/b लेस देन 1 वाला, ये वाला। ठीक है, इसमें भी आप a/b निकालते हो और उसके कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू से आप CF की वैल्यू निकाल लेते हो, तो CF की वैल्यू आपकी यहाँ से निकल आएगी। ठीक है, उसी तरीके से आपको AE निकालना है। ठीक है, AE निकालने का मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, लेंथ परपेंडिकुलर टू विंड लोड एंड नंबर ऑफ कॉलम्स इन द डायरेक्शन। सो यहाँ पर आप देख लीजिए कितनी है परपेंडिकुलर डायरेक्शन, प्लान है 30/20 मीटर्स का। सो दिस इज योर 30 मीटर्स, क्योंकि परपेंडिकुलर टू विंड डायरेक्शन है, तो 30 यहाँ लिख दिया मैंने ऊपर। नंबर ऑफ कॉलम्स काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। ठीक है, तो 7 यहाँ रख लिया, तो इसके हिसाब से मेरा आ गया 4.285 मीटर। ये मीटर स्क्वायर होना चाहिए क्योंकि ये पर मीटर की लेंथ है। ठीक है, सो यू कैन राइट दिस मीटर स्क्वायर बिकॉज़ दिस इज एन एरिया। तो अब आप लोग देख लीजिए अलग अलग हाइट पे विंड फोर्स कितना लग रहा है। तो 10 मीटर्स पे पीडी की वैल्यू गिवन थी आपको, 15 पे 20 पे 30 पे पिछली टेबल से आप लोगों को ये वैल्यूज मिली थी। ठीक है, फोर्स का फॉर्मूला क्या था जो भी हमने निकाला, CF इंटू AE इंटू PD। तो PD पता है, AE पता है और CF पता है, अब मल्टीप्लाई कर लीजिए, यू विल गेट दीज वैल्यूज एट डिफरेंट हाइट्स। ठीक है, तो फोर्स कितना लग रहा है देखिए, न्यूटन मीटर में इतना फोर्स लग रहा है। तो यहाँ पर कुछ नहीं, हम लोगों ने बस इसको किलो न्यूटन में कन्वर्ट किया और कुछ नहीं किया, डिवाइडेड बाय 1000 करोगे तो किलो न्यूटन में आ जाएगा। ठीक है, तो फोर्स किलो न्यूटन में देख लीजिए, हर हाइट के संग ये भी इंक्रीज होते जा रहा है फोर्स। देखिए जितना फोर्स लग रहा है वो बढ़ते जा रहा है। 10 मीटर्स में 4.1 था, फिर 4.7 हुआ, 20 मीटर्स पे गया तो 5.1, उससे ऊपर गया तो 5.69। ठीक है, तो ये भी बढ़ता जा रहा है आपको। तो डिजाइन फोर्स, विंड फोर्स हम लोगों ने निकाल लिया। ठीक है, अब हम लोगों का लास्ट में एक काम है कि ये फोर्स जो एक्ट करते हैं वो कहाँ पे एक्ट करते हैं, नोड्स पे। नोड्स क्या होते हैं, जहाँ पे ये बीम और कॉलम मिल रहे होते हैं। ठीक है, तो इस पॉइंट्स पे आप लोगों को फोर्स निकालना होता है। तो इन पे निकालने का क्या तरीका है कि कितना फोर्स एक्ट कर रहा है, इसको आप कैसे निकाल सकते हैं। देखिए इसका तरीका देख लेते हैं। दिस इज योर लास्ट स्टेप। Here you can see nodes are to be considered at center of beam column joint, जहाँ पे भी बीम और कॉलम का जॉइंट है। ठीक है, वहां पर आप इसको कंसीडर करेंगे नोड्स को। अज्यूमिंग ओवरऑल डेप्थ ऑफ बीम 500 mm। देखिए क्वेश्चन में कहीं पे भी नहीं दिया था कि आपकी बिल्डिंग में बीम कितने डेप्थ की होगी, राइट। सो आप लोग उसको 500 mm अज्यूम कर लेना, अगर नहीं गिवन होगा। अगर गिवन होगा कि बीम और कॉलम का साइज गिवन होगा तो आप वो अडॉप्ट कर लेना, बट यहाँ नहीं गिवन था तो हमने 500 mm डेप्थ ऑफ द बीम अज्यूम कर लिया। ठीक है, अब ये डायग्राम थोड़ा आप ध्यान से देखिएगा, इसको थोड़ा कम कर देते हैं सो दैट एक विंडो में आ जाए पूरा डायग्राम। ठीक है, इस डायग्राम को आप ध्यान से देखिएगा, इस पे क्या हो रहा है। सो दिस इज योर ग्राउंड लेवल, ये अलग अलग नोड्स है, मैंने आपको बताया। ठीक है, ये डायग्राम ध्यान से देखिएगा क्योंकि इसमें आपको ये निकालना है कि वो नोड्स पे फोर्स, विंड फोर्स कैसे एक्ट करता है। ठीक है, सो दीज आर योर नोड्स। तो आपको इस तरीके से देखना, देखिए बिल्डिंग की हाइट आपकी कितनी थी, 30 मीटर्स थी, राइट। तो आपको मैंने बताया कि यूनिफॉर्म जो फ्लोर्स की हाइट है वो यूनिफॉर्म रखनी है आपको। तो हम कितना करेंगे कि कितने फ्लोर्स बनेंगे, अगर मान लीजिए मैं 4-4 मीटर के फ्लोर लेता हूँ तो कितने बनेंगे 30 में, 7 4 28 मीटर हो जाएगा और 2 मीटर बच जाएगा करीब करीब, है ना। तो हम लोगों ने क्या किया कि जो है 6 फ्लोर्स तो हमने 4 मीटर्स के बना दिए, 6 4 24, और लास्ट जो सबसे बॉटम वाला फ्लोर है वो 5 मीटर्स का बनाया, क्योंकि आपने देखा होगा बॉटम में हमेशा पार्किंग वगैरह और ये सब कुछ रहता है ना, तो वहां पर ज्यादा हाइट की जरूरत पड़ती है। तो हम लोगों ने 5 मीटर्स ले लिया, तो टोटल कितना हो गया, 6 4 24 प्लस 5 29, और बचा हुआ 1 मीटर जो है वो ग्राउंड के नीचे की तरफ है। ठीक है, ग्राउंड से मतलब ग्राउंड लेवल से नीचे की तरफ है, तो ये टोटल 30 हो गया। तो 6 तक का है ये ऊपर फ्लोर 4 मीटर्स के, एक लास्ट जो फर्स्ट फ्लोर है, ग्राउंड फ्लोर है, वो 5 मीटर्स का, तो 29 मीटर हो गया, प्लस 1 मीटर इज बीनीथ दिस ग्राउंड, तो ग्राउंड लेवल के नीचे है। तो ये पूरा जो हाइट हो गई कितना हो गई, 30 मीटर्स की हो गई। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपने हिसाब से भी डिसाइड कर सकते हो। तो हमने इस तरीके से अडॉप्ट किया। आप 7 फ्लोर्स के हिसाब से या किसी और अगर कोई और हाइट गिवन होती तो उस हिसाब से आप डिवाइड कर सकते थे इसको। ठीक है, 4 मीटर्स पे या 3 मीटर्स 5 मीटर्स की आप हाइट रख के यूज कर सकते हो। तो हम लोगों ने अभी ये अडॉप्ट किया फिलहाल। तो देखिए 1 मीटर का ये नीचे है। तो फर्स्ट नोड, ये जो नोड है ये क्या चीज है, यहाँ पर देखिए आपका कॉलम है और ये आपकी बीम है, ये कॉलम है, ये आपका बीम है, स्लैब है मतलब। ठीक है, कॉलम एंड दिस स्लैब, कॉलम स्लैब। तो यहाँ पर जो जॉइंट है इसको बोल रहे हैं हम लोग नोड। ठीक है, अभी नोड, पहला नोड जो आपका 0 0 नोड मैंने बोला जो बीनीथ द ग्राउंड है। ठीक है, जो ग्राउंड के नीचे उसको मैं 0 0 बोल रहा हूँ, और उसके ऊपर 1 1 2 2 3 3 एंड सो ऑन, इस तरीके से नोड्स ऊपर की तरफ बढ़ते जाएंगे जितनी भी आपकी 30 मीटर हाइट तक है।
अब इसको कैलकुलेट करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि नोड कहाँ पर होगा। ठीक है, नोड कहाँ पर होगा, जहां पर आपका बीम है, ठीक है, उसके सेंटर पे, उसके सेंटर पे। तो बीम का आपको इसके लिए बीम की डेप्थ पता होनी पड़ेगी। बीम की डेप्थ कितनी है, 500 mm है। तो बीम का कहीं पर भी अगर मैं हाफ देखूं तो कितना होगा, 250 होगा, 250 mm होगा, राइट। तो यहाँ पर देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, ग्राउंड से लेके नोड 0 0 की डिस्टेंस कितनी होगी, यहाँ से यहाँ तक तो 1 मीटर है नोड जहां तक है, लेकिन हम लोगों को कहाँ तक का चाहिए, जहां पर नोड का सेंटर हो। तो टॉप से नोड के सेंटर तक का मतलब यहाँ से इतना डिस्टेंस माइनस कर दो, मतलब बीम का, ये जो बीम का है डेप्थ जो है उसको हाफ कर दो। तो -1 मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि ग्राउंड के नीचे है। सो -1 प्लस 0.005 मतलब 500 mm को मीटर्स में किया, डिवाइडेड बाई 2 इज गिविंग यू -0.75 मीटर्स। तो पहला नोड आपका कहाँ पर है, -0.75 मतलब कि जीरो से नीचे है, ग्राउंड लेवल से नीचे है 0.75 मीटर्स पे। ठीक है, उसी तरीके से मैं आपसे कहूँ कि आप लोगों को नोड 1 1 निकालना है, तो सिंपल सी बात है, आपका जो हाइट है वो कितनी है, ग्राउंड लेवल से जीरो से लेके आप यहाँ तक निकालेंगे 5 मीटर्स, इस यहाँ तक का, ये देखिए यहाँ तक 5 मीटर्स। लेकिन हम लोगों को नोड कहाँ पर देना होता है, जो उसकी सेंटर पे होता है। तो सेंटर कितना होगा, 500 डिवाइडेड बाई 2 मतलब 250 माइनस करना पड़ेगा। 500 5 माइनस 250 मतलब 0.25 या फिर 250 mm कह लीजिए, तो इट विल गिव यू 4.75 मीटर्स। तो अगला नोड आपको मिलेगा 4.75 मीटर्स फ्रॉम दिस ग्राउंड। ठीक है, उसका अगला नोड कहाँ पर मिलेगा, बहुत सिंपल है, ये 4 मीटर का है पूरा, यहाँ से यहाँ तक का, आपको सिर्फ इसके सेंटर तक का लेना है। तो कितना घटाना पड़ेगा 4 में से, आपको 4 में से पूरा, सॉरी आपको टोटल हाइट में से 5 + 4, ये टोटल हाइट में से ये डिस्टेंस माइनस करनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा आपका, ये नोड आपको कितने ऊपर मिल जाएगा, 8.75 मीटर्स पे। तो 9 - 0.5 डिवाइडेड बाई 2, सब में मतलब ये हो रहा है कि जितनी टोटल हाइट है माइनस 250 mm माइनस करते रहे, मतलब 0.25 माइनस करें। सो दिस इज एट योर 8.75 मीटर्स। ठीक है, तो अगला वाला आप खुद से निकाल सकते हैं, इसको अगर आपको निकालना हो, ये भी 4 मीटर्स पे है, ये कितना हो जाएगा 5 + 4 + 4, ठीक है, 5 4 9 + 13, तो 13 - 0.5/2। ठीक है, तो वो आ जाएगा आपका, वो यहाँ पर अगला नोड आपका इससे आपको मिल जाएगा, आपको नोड 3 ये वाला हो जाएगा, नोड 3। इसी तरीके से नोड 4 तो जब तक ये 30 मीटर्स की हाइट तक का नहीं पहुंच जाता तब तक आप निकालते रहेंगे इसको। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट था, जहां जहां पर ये नोड्स क्या कौन से पॉइंट है जहां पर विंड फोर्स आपके एक्ट करेंगे। ठीक है, ये निकालना जरूरी था। तो आई होप कि समझ में आ गया होगा आप लोगों को। इसमें एक चीज और ध्यान रखिएगा आप, जैसे ये वाला फ्लोर ले लीजिएगा आप, इसमें यहाँ पर जो नोड लग रहा है, ये नोड है यहाँ पर नोड 1 1। ठीक है, इसमें जो आपका हाइट है, जो आपका फोर्स लगेगा, वो 2 डायरेक्शन में डिवाइड होगा। एक तो यहाँ से नीचे की तरफ आधा, और आधा जाएगा यहाँ से ऊपर की तरफ। ठीक है, उसी तरीके से यहाँ पर भी नोड है, ये वाला नोड 2 2, इसमें फोर्स आधा ऊपर की तरफ और आधा नीचे की तरफ, उसमें भी आधा नीचे की तरफ और आधा ऊपर की तरफ। तो आपको आधी ही हाइट कंसिडर करनी है, आधा ऊपर आधा नीचे, इस तरीके से। ठीक है, तो अब मैं अगर ये वाला ले लूं, इफ आई टेक दिस वन, तो 4.75 मीटर्स पे था टोटल। देखिए नोड कहां पर है मेरा, 4.75 मीटर्स पे है। ठीक है, 4.75 मीटर्स पे है ये डिस्टेंस। नाउ क्लास जस्ट गिव मी अ मिनट, मेरे को 1 मिनट चार्जर जरा यूज करना है, जस्ट अ मिनट। सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस क्लास, सॉरी। हाँ, तो देखिए जैसे मैं बता रहा था, आधा फोर्स ऊपर की तरफ लगेगा और आधा नीचे की तरफ। तो इसमें देख लीजिए आपका जो नोड से आधा फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा है और आधा नीचे की तरफ। दैट मीन्स कि कितना लगेगा, जितनी हाइट है 4.75 मीटर्स की हाइट है नोड तक का, तो नीचे की तरफ कितने में लगेगा, इसके हाफ में 2.375 मीटर्स पे नीचे की तरफ लगेगा और 2.375 पे ऊपर की तरफ लगेगा। ठीक है, तो इस तरीके से डिवाइड होगा। इसमें भी आप देख सकते हैं, यहाँ पर जहाँ पर नोड है आपको वहां से नीचे हाफ हाइट में, मतलब ये 8.75 है, तो इसको भी आप कैसे निकालोगे, 8.75 है, ये 4.75 है, जो भी डिस्टेंस आएगा तो उसके हाफ में यहाँ लगेगा, हाफ में ऊपर की तरफ लगेगा। ठीक है, ये हम लोगों को ध्यान में रखना है। तो नेक्स्ट टेबल देख लीजिए, दिस विल बी योर लास्ट टेबल।
अब देखिए इसमें नोड किस तरीके से मैंने लिया हुआ है, ये देख लीजिए, नोड 00, 11, 22, 33, 44, 55, 66, 77, ठीक है। अब ये वो वाली हाइट है जो मैंने लिखी हुई है, देखिए इसमें 00 पे -0.75, 4.75, 8.75, 12.75 है ना। तो सब में से देखिए आप जितनी भी हाइट है टोटल में से 2.25 माइनस हो गया। तो ये 12 से ये 13 था तो 12.75, ये 9 मीटर्स आ रहा था तो 8.75 हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से देख लीजिए, यहाँ पर मैंने आपको दिखाया था ऑलरेडी, ये 0.75 माइनस में क्योंकि ये ग्राउंड के नीचे है, 4.75, 8.75, 12.75 इसके ऊपर फिर और ऊपर तक का, ठीक है। तो ऐसे कितने नोट्स बन रहे हैं हम लोगों के, 7 नोट्स बन रहे हैं, देखिए 28.75 मीटर तक का ले लिया हम लोगों ने, ठीक है। सो 28.75 मीटर्स लिया है, मतलब कि इसमें अगर आप 0.25 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 29 आ जाएगा, और 1 मीटर्स जमीन के अंदर था तो टोटल 30 मीटर्स तक आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट इज योर लोडिंग लेवल। अब ये लोड जो लग रहा है वो कहाँ पर लग रहा है ये निकालना आपको, ये इंपॉर्टेंट है, देखिएगा 0 पे आपका लग रहा है 0 to 2.375। मैंने बताया था आपको, जस्ट अभी बताया था कि ये 0 वाला लेवल है, ठीक है। नोड 0 जो 0.75 पे एक्ट करेगा, उसमें क्या है, आधा नीचे की तरफ लग रहा है, आधा ऊपर की तरफ लग रहा है, तो हाफ में नीचे की तरफ लूंगा, मतलब हाफ कितना है, 0 से लेके 2.375 है ना। और अगला जो लगेगा वो कितना लगेगा, 2.375, मतलब आधी हाइट से लेके इसकी आधी हाइट तक 8.75 के हाफ तक का लगेगा। तो यू कैन सी दैट, देखिए 0 से 2.375 तक का आपका नोट 0 पे लग रहा है, 1 पे देखिए कितना लगेगा, 2.375 जो नीचे वाले पे लग रहा है, और 6.75 जो ऊपर वाले पे लगेगा, यहाँ पर देख लीजिए आप, ये ठीक है। तो 8.75 है, ठीक है, 8.75 है, इसका हाफ नीचे की तरफ लगेगा, हाफ ऊपर की तरफ लगेगा, मैंने बताया था। और ऑलरेडी यहाँ पर आपका कितना था, 4.75 था, जिसका हाफ कितना था, 2 पॉइंट समथिंग, तो 4 पॉइंट समथिंग प्लस 2 पॉइंट समथिंग विल गिव यू 6 पॉइंट समथिंग। अब देखिए यहाँ पर 6 पॉइंट समथिंग आ रहा होगा, ये देखिए 6.75, ठीक है। अब जो नेक्स्ट वाले नोट पे लगेगा वो कितना लगेगा, 6.75 टू 10.75, और 10.75 कैसे आ रहा है, देखिए ये 8.75 था, यहाँ पर मेरे ख्याल से 12.75 है, 12.75 आ रहा है यहाँ पे, ये जो नोट की हाइट है वो 12.75 मीटर्स पे है। तो अब अभी देखिए इसका हाफ ऊपर जा रहा है, मतलब 8.75 का हाफ, ठीक है। तो ये ऊपर गया 4 पॉइंट समथिंग, 12.75 का हाफ नीचे आया 6 पॉइंट समथिंग, तो 4 + 6 जितना भी आ रहा है, तो दैट विल गिव यू 10 पॉइंट समथिंग, तो 10.75 के अराउंड आ रहा है ना, देखिए 10.75। तो नेक्स्ट वाला कहाँ से शुरू होगा, 10.75 से शुरू होगा, और अगले वाले ऊपर वाले नोड से और उसके नीचे वाले नोड के हाफ से आप ले लेंगे। तो जो आपका लोडिंग लेवल है ना, वो ये लेवल है आपका, देखिए ये 2.375, 6.75, और ये होते होते आप देखेंगे कि एग्जैक्ट आपका 30 मीटर्स पर आकर रुक जाएगा लोडिंग लेवल, ठीक है। तो आपका लेवल्स पता चल गया कहाँ पे आपका लोडिंग होनी है, ठीक है। नाउ अब आपको इसमें आपको लोड निकालना है, आपका मेन का अल्टीमेट काम तो ये था ना कि आपको यू हैव टू फाइंड द लोड इन किलोमीटर पर मीटर, ठीक है। तो अब आप कहोगे सर ये तो हमने निकाला है ऊपर, यहाँ पे लोड तो हम लोगों ने निकाल रखा है, तो आप लोगों को भी टेबल यूज करना पड़ेगा लोड निकालने के लिए, किलोमीटर पर मीटर वाला ये टेबल यूज करना पड़ेगा। सो यू नो द लोड फ्रॉम हाइट 10, 15, 20 और 30, 10 से नीचे वाली जितनी भी हाइट होंगी उसके लिए आपको नहीं पता है तो आप कितना ही लोगे, 4.196 लोगे, क्योंकि उससे नीचे आपको कंसीडर करने की जरूरत नहीं होती वैसे, है ना। तो आप कितना ले सकते हो, जो मिनिमम है 4.196 पे, 10 वाले पे आप लोगे 4.196, ठीक है, 15 पे लोगे 4.7। अब आप कहोगे सर कहीं पर 10 पॉइंट समथिंग आ गया तो क्या करेंगे, तो आप उसको इंटरपोलेट कर लोगे, ठीक है, लीनियर इंटरपोलेशन से बीच का वैल्यू निकाल लोगे। मान लीजिए आपको यहाँ पे 17 पॉइंट समथिंग आ गई हाइट, तो आप क्या करोगे, 15 और 20 वाले को इंटरपोलेट कर लोगे, इसके बीच की वैल्यू निकाल लोगे। वही हमने यहाँ पर किया हुआ है, देख लीजिए, जब 2.375 है लोडिंग एरिया तो 4.196 लिया है, क्योंकि विंड लोड अप टू 10 मीटर हाइट फोर्स हम उतने लेंगे जितना 10 मीटर्स तक का था। अब अगली हाइट कितने पे है, लोडिंग कितने पे है, 6.75 पे है, तो ये भी 10 मीटर से कम है, तो ये भी हम 4.196 लेंगे। नेक्स्ट वाला आपका 10.75, अब ये देखिए 10 से ऊपर चला गया, और 10 में हम लोगों का कितना था, 4.196 था, तो ये आ गया 10.75। तो 10 और 15 के बीच का आपको इंटरपोलेट करके 10.75 वैल्यू निकालनी पड़ेगी, तो 4 पॉइंट समथिंग देख लीजिए कितना आ रहा है,
इंटरपोलेशन आप लोग कर सकते हैं। सो दिस इज कमिंग एज 4.282, ठीक है। उसी तरीके से नेक्स्ट वाला लोडिंग कितने पे है आपका, आप ये सिर्फ ये वाली साइड देखिएगा, राइट हैंड साइड जो नेक्स्ट लोडिंग आपका है 14.75 मीटर्स पे। 14.75 पे निकालना है तो क्या करोगे, इस टेबल पे वापस जाओगे, 10 और 15 के बीच में ही है मेन 14.75, तो ये कुछ कुछ 4.76 के नजदीक आना चाहिए, 4.6 समथिंग आना चाहिए ना। तो आप देख लेना इसका कितना आ रहा है, 4.739 आ रहा है, ठीक है, इस तरीके से। उसी तरीके से आप ऊपर वाले में देखेंगे 18.75 है, राइट, 18.75 है। ऊपर जाके आप फिर से 15 और 20 के बीच में जाके इंटरपोलेट कर लेंगे, 22.7 में भी आप 20 से 25 के बीच में, और ये 25 से 30 के बीच में इंटरपोलेट कर लेंगे, और लास्ट में 30 है, जो 30 वाले में हमारे पास ऑलरेडी तो 5.694 आप देख लीजिए, 30 पे 30 मीटर्स पे कितना है 5.694, तो मैंने यही यूज कर लिया 5.694। तो ये आपका लोड आ गया किलोमीटर पर मीटर पे, ठीक है। तो ये पर मीटर पे ये लोड है आपका किलोमीटर पर मीटर पे जो एक्ट कर रहा है। अब हम लोग को नोडल पॉइंट लोड निकालने की, हर एक नोड पे कितना लोड लग रहा है, ठीक है। नोड मतलब ये जो मैंने आपको बताया, इस जगह पे कितना लोड लग रहा है, इस जगह पे कितना लग रहा है, तो ये आप कैसे निकाल सकते हो। इसको निकालने का तरीका क्या है, सिंपली आप क्या करना, जो इसके डिफरेंस जो है, ठीक है, लेवल में जो डिफरेंस है 30 माइनस 2.675 इंटू दिस फोर्स कर देना, क्योंकि किलोमीटर मीटर पे है तो ये मीटर पे आएगी डिस्टेंस, तो इसको कैंसिल करेगा तो किलोमीटर पे आ जाएगा, ठीक है। तो 30 माइनस 2.675 इंटू 5.6 विल गिव यू 18.505 किलो न्यूटन, ठीक है। उसी तरीके से नेक्स्ट वाले में 26 माइनस 22.75 इंटू दिस विल गिव यू दिस वैल्यू, ठीक है। तो नोड पॉइंट पे आपके लोड्स निकल आएंगे, ये देखिए 22 माइनस 18.75 इंटू 5.31 विल गिव यू 21। तो ये आपके नोड पॉइंट लोड्स आ हर एक नोड पे, तो 0 पे आया 9.6। अब देखिए नोड के संग ये भी बढ़ते जा रहे हैं, ये सब किलो न्यूटन में, ठीक है। सो ऊपर मैंने लिखा है दिस किलो न्यूटन। सो 9.9, 18, 17, ठीक है, 18.9, 20, 21, तो अलग अलग जगह पे अलग अलग लोड्स एक्ट कर रहे हैं, अलग अलग नोड हाइट पे, ठीक है। ये आपके नोड्स के मैंने 7, 7, 6, 6, 5, 5 अलग अलग नोड्स पे अलग अलग आपके लोड लग रहा है। तो आपको पता चल गया कि हर एक नोड पे कितना लोड लग रहा है, कितने किलो न्यूटन का विंड लोड लग रहा है, यही तो कैलकुलेट करना था हम लोग, है ना। तो ये देख सकते हैं आप ऐसे इसको भी, और मैंने ऊपर वैसे बता दिया आपको कि अगर आपको 10.75 के लिए निकालना है तो आपको 10 से 15 के बीच में इंटरपोलेट करके निकालना है, या फिर आप इस तरीके से भी निकाला हुआ है कि जैसे 10 to 15 मीटर्स में गैप कितना है, 5 मीटर्स का गैप है, और इसके बीच में कितना गैप है 0.572 का, तो 0.75 में कितने मीटर्स का होगा। सो वही तरीका है, आप लोग इसको भी निकाल सकते हैं इस तरीके से, 4.196 प्लस दिस वैल्यू 4.282 ये आ जाएगा, नहीं तो आप इंटरपोलेट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो आप ये तरीका भी सीख सकते हैं, जैसे 18.75 पे है, यहाँ पर आपको निकालना था 18.75 पे ये वैल्यू आपको निकालनी थी, तो आप क्या करोगे, 18.75 है 20 और 25 के बीच वाला ले लो आप, तो सॉरी 15 और 20 के बीच वाला ले लो। 18.75 15 और 20 के बीच में कितना गैप है, 5 मीटर्स का गैप है, 5 मीटर्स, इन दोनों के बीच में कितना गैप है 0.41, तो 3.75 मीटर्स पे कितने का गैप होगा, मतलब 3.75 कैसे आया, 15 ये है और 18 ये है, तो 15 से 18 के बीच का गैप कितना 3.75 मीटर, राइट। तो उसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो यू विल गेट 0.30075, और जो छोटी वाली हाइट है 4.7 प्लस 0.30075 करोगे तो 5.068 आ जाएगा। यहाँ पे मैंने 5.068 या 69 यहाँ पे यूज किया, ठीक है। इस तरीके से आप निकाल सकते हो। और लास्ट में आप लोगों को जो क्वेश्चन में गिवन था कि आपको विंड प्रेशर डायग्राम बनाना है, ठीक है, तो विंड प्रेशर डायग्राम आप लोग बना सकते हैं, इसका यूज करते हुए देख लीजिए। तो विंड प्रेशर कितना था आपका, जो ग्राउंड लेवल है, फिर उसके बाद अगला कहाँ पर था 2.37, 6.75, ये वाली चीज ले रखी है मैंने, 2.375, 6.75, 10.75, 14.75 होते 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 आपका 30 मीटर तक आ जाएगा, ठीक है। और लोड कितना आएगा आपका, विंड प्रेशर किलो न्यूटन पर मीटर वाला आप ले लेंगे 5.694 से लेके 4.169, तो आप देखोगे ये बढ़ता जा रहा है 4.196, 4.196, 10 मीटर तक तो इतना ही रहेगा, 10.75 में चेंज हो गया था, फिर थोड़ा और बड़ा, फिर 5 हुआ, फिर 5.3 हुआ, फिर 5.5 हुआ, और लास्ट में 30 मीटर्स पे 5.6 हो गया था। तो इस तरीके का कुछ आपको विंड प्रेशर डायग्राम मिलेगा, ठीक है। तो आप ये लास्ट में इस डायग्राम को बना सकते हो, हर एक लेवल पे विंड प्रेशर डायग्राम आप दिखा सकते हो, ठीक है। अगर आपसे बोला गया कि नोडल पॉइंट्स पे कितना लोड लग रहा है वो भी आप दिखाना है, तो ये है वो जो नोडल पॉइंट्स पे लोड लग रहे हैं,
तो आप देख सकते हो हर एक पॉइंट पे नोड 7 पे 18 लग रहा है, नोड 6 पे 22 लग रहा है, नोड 5 पे 21 लग रहा है। तो सेम आप लोग रख सकते हैं यहाँ पे। बस इसमें ये ध्यान रखिएगा कि जो नोड 0 था वो ग्राउंड लेवल के नीचे है, तो आप नीचे दिखाइएगा नोड 0 पे कितना लग रहा है। देखिए 0 पे लग रहा है 9.965 किलोमीटर, तो आप ग्राउंड लेवल से नीचे दिखा दीजिए 9.965। 1 पे लग रहा है 18, फिर 17 लग रहा है 2 पे, 3 पे 18, 5 6 3 4 5 6 6 एंड 7 पे लग रहा है आपको 18.505। 18.505 होगा, ये देखिए 18.505 7 पे। तो ये आप इसको डायग्राम से दिखा सकते हो, नोड पॉइंट को भी आप दिखा सकते हो। नोड पॉइंट मैंने फिर से बता दूं, जहां पर आपका विंड फोर्स जो है एक्ट करेगा, वो आपके जो पॉइंट से, नोड पॉइंट से, ठीक है। और कितना फोर्स एक्ट कर रहा है, इतने किलोमीटर का। तो ये प्रेशर हो गया किलोमीटर पर मीटर में, ठीक है। आपका जो विंड प्रेशर डायग्राम जो होगा वो इस तरीके से होगा। एंड जो जो ये आपके नोड पॉइंट लोड्स होंगे, नोडल पॉइंट लोड्स होंगे, हर एक नोड पॉइंट पे कितना लोड लग रहा है वो आप इस तरीके से किलोमीटर पे निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये आपके पूरा का पूरा इस तरीके से डिजाइन हो जाएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आप लोग थोड़ा सा प्रैक्टिस कीजिएगा, इससे रिलेटेड कुछ और भी क्वेश्चंस कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि देखिए क्वेश्चन बहुत बहुत ज्यादा टिपिकल नहीं है, आसान क्वेश्चन है। जब बस इसमें इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपको किस पेज से कौन सा क्लॉज लेना है ये आपको पता होना चाहिए, वो इंपॉर्टेंट है। आपके पास अगर हाथ में कोड होगा और आपको पेजेस नंबर पता होंगे और टेबल नंबर पता होगा, तो आप डायरेक्टली वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते जाना है, टेबल्स बनाने, और ये सिर्फ आपको क्या निकालना है, 3-4 चीजें निकालनी है। उसमें से भी मेन में आपको क्या निकालना है, लास्ट में लोड निकालना है। नोडल पॉइंट लोड पूछा तो आप ये निकाल सकते हैं, नहीं तो अगर वेन प्रेशर सॉरी वेन लोड निकालना है तो आप ये एफ निकाल सकते हैं, ठीक है। सो आप लोग इस डायग्राम को और इस क्वेश्चन को अच्छे से देख लीजिएगा। एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को फर्दर किसी क्लास पे वो वाला कराऊंगा जिसमें हम लोगों का केस होगा, जो टोपोग्राफी था वो तो ग्रेटर देन 3 होगा जिसमें, ठीक है। ऑफ एंड स्लोप जो है टोपोग्राफी फैक्टर इट इज ग्रेटर देन 3 डिग्री, क्योंकि उसके लिए थोड़ी कंडीशंस चेंज हो जाएंगी, ठीक है। तो हम लोग टेबल से देखेंगे कि वो कैसे कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन में क्या होगा, वेरी क्या होगा, क्वेश्चन हमेशा यही सेम आएगा, फर्क क्या आएगा उसमें, हाइट का चेंज हो जाएगा, ये डायमेंशन चेंज हो जाएगी, स्टोरी हाइट हो सकता है खुद बता दे, नहीं तो आपको लोकेशन चेंज कर देगा, आपको ग्राफ से देखना पड़ेगा, सॉरी टेबल से देखना पड़ेगा, इनिशियल से कौन सी लोकेशन के आप डिजाइन कर रहे हो, कैटेगरी चेंज कर देगा, लाइफ चेंज कर देगा, 100 की जगह 25 75 यूज कर देगा, ठीक है। लेकिन ओवरऑल क्वेश्चन आपका सेम रहना है, आपको लास्ट में विंड लोड्स ही निकालने हैं, कितना एक्ट कर रहे हैं विंड लोड्स, और नोडल पॉइंट्स पे कितना नोडल पॉइंट्स पे कितना लोड लग रहा है वो आपको बताना पड़ेगा, और ड्रॉ विंड प्रेशर डायग्राम। सो विंड प्रेशर डायग्राम मैंने आपको लास्ट में बना के दिखा दिया, ठीक है। जो किलोमीटर पर मीटर वो वाला जो मैंने आपको डायग्राम दिखाया था, दैट इज योर विंड प्रेशर डायग्राम, ठीक है। सो आई होप कि ये क्वेश्चन आपके समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से आप रिव्यू कीजिएगा इस वीडियो को, आपको समझ में आ जाएगा। कुछ और क्वेश्चन इस पे बेस्ड प्रैक्टिस कीजिएगा, बिकॉज मोर और लेस क्वेश्चन इसी पे बेस्ड आने हैं, सारे फॉर्मूला सारे कोड प्रोविजंस यही यूज होंगे, ठीक है। कुछ नया नहीं आएगा इसमें, जस्ट दैट कि आपको कैलकुलेशंस और क्लॉज पता होना चाहिए कि कहाँ कहाँ पर कौन सा क्लॉज गिवन है, ठीक है। तो ये यूनिट सेकंड का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, डिजाइन विंड लोड निकालना हर एक नोड पे, और विंड प्रेशर डायग्राम कैसे आपको बनाना है वो भी आपको निकालना है, ठीक है। सो इसी से बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, कोई भी क्वेश्चन आएगा सेम इसी पैटर्न पे बेस्ड आएगा। मैंने आपको फिर से बता दिया, इंपॉर्टेंट चीज है, आपको ना तो फॉर्मूले रखने हैं ना कोई वैल्यूज रखनी है, कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ ये पता करना है कि 3 स्टेप थे, चौथा डायग्राम था, 3 स्टेप में से हर एक स्टेप का आपको जो फॉर्मूला है या फिर जो वैल्यूज है वो कौन से नंबर पेज नंबर से मिलेंगी या कौन से एनेक्सर से मिलेगा, वो आपको बस पता करना है, दैट इज ऑल। अगर वो आपके पास होगा और कैलकुलेशन आपकी अच्छी होगी, अगर कैलकुलेटर्स पे आप अच्छे हो तो इस क्वेश्चन को बहुत जल्दी आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो ये मेरे ख्याल से काफी इजी क्वेश्चन है, थोड़ा प्रैक्टिस की जरूरत लगती है, आई अंडरस्टैंड, और आपको थोड़ा सा कोड पे प्रैक्टिस होनी जरूरी है कि कौन से पेज नंबर पर आपको क्या मिलेगा। तो इट इज वेरी इजी, अगर आप 1-2 क्वेश्चन ऐसे कर लोगे तो यू विल ऑटोमेटिकली नो कि कौन सा वाला स्टेप कौन से पेज पे आता है, ठीक है। ठीक है फिर, और आज के क्लास में हम लोग इतना ही रखते हैं। थोड़ा बहुत किसी को भी कुछ भी डाउट हो तो वो मुझसे पर्सनली व्हाट्सएप पे पूछ सकता है, ठीक है। वीडियो आई विल पोस्ट टुडे इटसेल्फ, किसी को रिवाइज करना हो तो इस वीडियो को दोबारा से रिव्यू करके देख लेना।
ठीक, सो दैट इज ऑल फॉर टुडे क्लास। नेक्स्ट क्लास मैं कल लूंगा आप लोगों की, और न्यू टॉपिक हम लोग उसमें स्टार्ट करेंगे। ठीक है, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग क्लास। आप लोग थैंक यू सर। अटेंडेंस मार्क कर दीजिएगा अपनी। थैंक यू।